Assalamu alaikum students. We have discussed about previously in the previous lecture we have discussed about Vesper theory. Now we are going to start with the VBT and sigma and pi bonds. In the previous lecture we have discussed about shape of molecules, how they are arranged, how they arrange themselves, what are the theories of covalent bonding. We have discussed about Vesper theory, valence shell electron pair repulsion theory. We have seen postulates of this theory. Then we went for the shapes, how we draw them, what is the central atom, what are lone pair, what are bond pairs, and all that. Fine. Now I'm going to start with the VBT. And VBT as you can see, इसको हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT भी कहते हैं एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी इसका नाम लिया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज important, that is Hitler and F. London calculated theoretically the bond energy and bond length of hydrogen with the help of wave mechanics. First of all, what is the bond energy? Bond energy is the energy required to make or break the bond, and bond length between two atoms, how far they arrange themselves. So the length of those two atoms is known as bond length. So they actually measure and calculated the bond length and bond energy with the help of wave mechanics. This treatment became known as the valence bond theory. Later on it was modified by L. Pauling and J.E. Slater. The concept is based upon wave mechanical treatment of molecule, and this theory is based upon the assumptions that a covalent bond between atoms is formed by the overlapping of partially filled. How it is different with the Vesper theory. In Vesper theory we were discussing about electron pairs and electrons, but here we are going to discuss with the shapes of the molecule. This is the main difference. Okay, so now let's we talk about the postulates of VBT. First postulate is one half filled orbital take part in the bond formation. What is the meaning of half filled orbital? Half filled orbital means the same if some species doesn't have a pair, if it is not having a pair, if it is not having a lone pair, it is just having a single electron. So usko अब we are going to discuss in with the new terms. We are going to discuss with the half filled orbital. Filled orbital is that one which contain two electrons, and half filled which is single one. Fine. So only half filled orbital take part in the bond formation. Number of bonds formed by an atom is equal to its number of unpaired electron. A molecular orbital is let me explain this point first. Number of bond formed by an atom is equals to its number of unpaired electron. Like it totally depends upon the बॉन्ड पेयर. सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करेगा जितने भी बॉन्ड्स बनेंगे. लाइक वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड पेयर्ड फॉर्म और लोन पेयर्स. सही है. सो दैट पॉइंट मस्ट बी क्लियर्ड. इन द वेस्पर थ्योरी वी वर डीलिंग विद दैट. वी वर काउंटिंग लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर बोथ, बट हेयर वी विल जस्ट डील विद द सिंगल वन, और उसको हम नाम न्यू देंगे. नाम इज द नेम इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. फाइन. अ मोलिकुलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय द लीनियर ओवरलैप of an atomic orbital. What is the meaning of linear overlapping? Like here we are not going to discuss with the help of electrons, we will just draw the shapes of that orbitals. उसकी p अगर s शेप है तो वो ये शेप होती है, अगर p शेप होती है तो ये शेप होती है. और अगर आप लोगों को याद हो, इन द प्रीवियस chapter we have discussed that s orbital shape is spherical, p orbital shape is dumbbell, d orbitals are double dumbbell. So ये उनकी बात हम करेंगे. Fine. The pairing of electron results in bond energy, and as the single electron paired, it results in the bond energy. And as I have explained, what is bond energy? Energy required to make or break the bond. This is known as bond energy. The electron pair is localized between two nuclei. इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होता है, लोकलाइज होता है बिटवीन टू न्यूक्लियाई. ऑब्वियसली दोज टू एटम्स विच आर टेकिंग पार्ट, फॉर एग्जांपल दिस इज़ वन एटम, दिस इज़ सेकंड एटम. सो इनके दरमियान जो न्यूक्लियाई होगा दैट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द, और वहाँ आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बनेगा. द ओवरलैप इज़ अ मेजर ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेंथ. ग्रेटर द ओवरलैप शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड लेंथ. सिंपल सी बात है कि जो चीज़ जितनी करीब होगी उसका बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और जो चीज़ जितनी छोटी होगी साइज़ में उसका बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा. इट इज़ वेरी बहुत एक कॉमन सी बात है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक धागा लेती हूँ, बड़ा सारा धागा है और हम उसको तोड़ना चाह रहे हैं, तो क्या कैन वी इजीली ब्रेक इट? ऑब्वियसली आपने एक धागा लिया है, उसके दो एंड्स हैं, आप उसको तोड़ोगे आप इजीली तोड़ सकते हो. बट एक टाइम आएगा कि धागे का साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा, एंड इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू स्ट्रेच इट और ब्रेक इट. सही है, उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा. तो ये सेम यही पॉइंट है कि जितनी बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाती है चीज़ की, उतना ही उसका स्ट्रेंथ या उसका जो शेप है वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है. ठीक है. द लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड
joined atom is called bond axis. जिस लाइन से ज्वाइन होंगे दो एटम्स के न्यूक्लियाई, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियाई है ये न्यूक्लियाई है, जिस लाइन से, इसको हम बॉन्ड एक्सिस कहेंगे. एंड द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स आर रिक्वायर्ड टू हैव सेम सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एक्सिस. ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है कि जो दो ऑर्बिटल, फॉर एग्जांपल ये ऑर्बिटल है ये ऑर्बिटल है, एक दूसरे के ऊपर मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं. ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स आर रिक्वायर्ड टू हैव सेम सिमेट्री. उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एक्सिस. इट ऑल्सो अकाउंट्स फॉर द ionic character of a covalent bond and the hybridization of atomic orbital. Now these are two new topics. Hybridization is our further topic which we are going to discuss inshallah in the next lecture. But covalent bond का ionic character क्या होता है? Ionic character सबसे पहले तो the point must be clear. Here we are discussing about the covalent bonding and the covalent bonding concept, fine. But if you know and if you remember, we have main two types of bonding. We have a covalent bonding and we have ionic bonding. So ionic bonding अगर हो covalent character में हो, for example अगर energy electronegativity का difference बहुत ज़्यादा आ रहा है, for example we have hydrogen and we have chlorine. Let me change the color and let me use the another color so that you can understand. For example, if I am talking about hydrogen and Cl, hydrogen belongs from first A group and Cl belong from 7A group. तो 7A group की जो पावर है वो ज़्यादा होगी, so it can easily take electron of hydrogen, fine. यहाँ क्या होता है कि although it is a covalent bond, although the bond is formed with the mutual sharing of electron, but because the electronegativity difference is very high, for example chlorine belongs from 7A group and hydrogen belongs from first A group, so 1 and 7 कोई comparison है इनका? There is a huge electronegativity difference. It contains 7 electron, it contains just 1 electron, so it creates electronegativity difference, and due to this we have a bit of ionic character. ion bond क्या होते हैं? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है. यहाँ पर दूसरी चीज़ उसका इलेक्ट्रॉन कम्प्लीट ले लेती है. यहाँ पर कम्प्लीट लेता तो नहीं है लेकिन होता सेम वैसा ही, काम तकरीबन वैसा ही है, बस वो शेयरिंग रही होती है, ठीक है. लेकिन क्लोरीन इतना पावरफुल है कि वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले चुका है, तो इसको हम कहते हैं आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के है कोवेलेंट बॉन्डिंग, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आयनिक शो कर रहे हैं, ठीक है. अच्छा, वाई वी आर डिस्कसिंग वीबीटी, वाई वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वेस्पर थ्योरी, और वीबीटी क्यों पढ़ रहे हैं, और वीबीटी के पॉइंट्स तो हमने देख लिए, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे. द लिमिटेशन टू वीबीटी आर एज फोलोज. It fails to explain the formation of coordinate covalent bond. Now, what is coordinate covalent bond? Coordinate covalent bond is the bond which is formed by the in which there is one कहना चाहिए कि donor who donates a pair of electron and there is a one acceptor who accept the pair of electron. Fine. So ये जो coordinate covalent bonding होती है, this arrow shows coordinate covalent bonding. So it was failed to explain that one. Coordinate covalent bond is the type of covalent bonding actually. It can't explain the formation of odd electrons molecule or ions. Ions के बारे में कुछ नहीं बता सके थे. The paramagnetic behavior of oxygen molecule is not justified by VBT. What is the paramagnetic behavior? Paramagnetic behavior sometimes have you seen कि आपने needles लेते हैं and sometimes needles जो होती हैं वो magnet की तौर पे act कर रही होती हैं. Like एक needle है वो दूसरी needle को उठा रही होती है. I'm sure you all have done that experiment and you all have seen, if you have not इन प्रैक्टिस विद दैट बट यू हैव सीन इट कि निडल्स एक दूसरी निडल को उठाती हैं. ये क्या होता है? ये ना समटाइम्स आपके पास एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल आयरन है, तो वो क्या करते हैं, वो मैग्नेट के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं. और वो क्यों कर रहे होते हैं ऐसे? क्योंकि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एक्चुअली अंदर की बात ये है कि केमिस्ट्री यहाँ पर ये है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पेयरिंग करना चाह रहे होते हैं, तो वो एज क्या कहना चाहिए कि मैग्नेट के तौर पे एक्ट करना शुरू कर देते हैं. दिस बिहेवियर इज़ एक्चुअली नोन एज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. सो VBT वॉज फेल टू एक्सप्लेन दैट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन एंड इट वॉज एक्चुअली एक्सप्लेन बाय MOT, and MOT obviously this is our next topic which we will discuss in the next lecture. Okay, now comes the difference between sigma and pi bond. What is sigma bond and what is pi bond? The sigma bond formed by the head to head overlap. For example, suppose कीजिए you have two balls,
here you can see we have two spherical सिग्मा बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि 2 स्फेरिकल बॉल्स हैं, ठीक है, अब ये क्या है, हेड टू हेड एक बॉल इस तरह से दूसरी बॉल के साथ ओवरलैप करेगी और इसको हम शेडेड पार्ट कर देते हैं, ठीक है, दिस इज़ आवर शेडेड पार्ट, ये वाला पार्ट है जो। सो यहाँ आपके दोनों इलेक्ट्रॉन मिले और जो आपके पास फाइनल फॉर्म जो शेप बनेगी वो ये बनेगी। तो ये क्या हुआ है, इसको हम कहते हैं हेड टू हेड ओवरलैप। दिस इज़ एक्चुअली सिग्मा बॉन्ड इन विच वन इलेक्ट्रॉन इज अटैच विद द सेकेंड इलेक्ट्रॉन and they have formed this kind of a bond, ठीक है। this is the example of hydrogen and for this आपको पता होना चाहिए कि what is the electronic configuration। for example if I am drawing this structure, हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे, how many hydrogens we must be having 2, एक हाइड्रोजन उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 आएगी, यानी कि आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल मिलेगा वो s मिलेगा, जो s है वो ये है। इसी तरह फॉर सेकेंड हाइड्रोजन अगेन इट इज़ सेम 1s1, तो ये दूसरा हो गया। तो इन्होंने इस तरह से ओवरलैप कर लेना है, एस एस के साथ ओवरलैप करेगा तो ये फाइनल फॉर्म बनेगी। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। वन सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम विल ओवरलैप विद द वन एस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेकेंड ऑर्बिटल। सिमिलरली वी कैन फॉर्म द बॉन्ड बिटवीन HF एंड N2। हाउ इट इज़ गोइंग टू फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एज वी कैन सी, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन यही होती है 1s1। तो हाइड्रोजन के केस में लेट मी सी कि आगे हमारे पास अगर एग्जांपल्स आ रही हैं, नो नहीं है, ओके लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। HF की बात करेंगे, H की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, H ये है 1s1, ठीक है, और F क्या होगा, F की कॉन्फ़िगरेशन होती है 9, लाइक एटॉमिक नंबर इज़ 9। सो इसको बनाएंगे 1s2 2s2 and 2p5। now we are not going to deal with all the electrons, like it is having 7 electrons, so we are not going to deal with all 7 electrons। आपने जस्ट आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है उसके अंदर देखना है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने जस्ट उसको उठाना है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, 5, यू हैव टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो 5 इलेक्ट्रॉन्स में कैसे होगा, 1 2 3 4 एंड 5, एज यू कैन सी आई हैव फिल्ड। सिर्फ एक, इनके नाम क्या होते हैं, इनके नाम कुछ ऐसे होते हैं, दिस वन इज़ px, दिस वन इज़ py एंड दिस वन इज़ pz। ये इन ऑर्बिटल्स के p ऑर्बिटल के फर्दर ऑन नेम्स हैं। तो ये जो आपका pz ऑर्बिटल है ये अनपेयर्ड है। सो ओनली दिस s which would be spherical in shape is going to overlap with the pz orbital of fluorine। और pz यानी कि p जितने भी होंगे उनकी शेप सबकी डम्बेल होगी। डम्बेल इस तरह की शेप होती है, ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू, ऐसी इस तरह की, ठीक है। तो ये वो है, तो किस तरह से ओवरलैपिंग होगी कि ये s आपका यहाँ से आएगा और ये p आपका यहाँ से आएगा और ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ओवरलैप करेंगे। किस तरह से करेंगे, देखिए, ये आया s और ये आया pz, फाइन, और इसको हम शेडेड कर देंगे। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये है H और ये है F, ठीक है। सो ये आपके पास HF बना है, ये आपके पास ये हो गया। इसी तरह अब नाइट्रोजन की बात करेंगे। नाइट्रोजन के केस में अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ आपके पास, तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन मैं एक की लिख रही हूँ, दोनों की सेम होगी। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है जनाब 7 एंड 1s2 2s2 एंड 2p3, ठीक है। सो इसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली ट्रिपल बॉन्ड्स बनेंगे और ट्रिपल बॉन्ड को बनाने का तरीका क्या होगा वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको क्या करना है। बट बिफोर स्टार्टिंग नाइट्रोजन लेट मी ड्रॉ अनदर एग्जांपल। यहाँ मैं आपको F2 की एग्जांपल पहले बना के दिखाऊंगी, फिर मैं आपको ऑक्सीजन की एग्जांपल बना के दिखाऊंगी, फिर मैं आपको नाइट्रोजन बना के दिखाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले F2 देख लेते हैं। होपफुली HF आपको समझ में आया होगा। अब आ जाइए F2 पे। यहाँ मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ F2 का मतलब ये है कि हाउ मैनी फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर वही जो मैंने पहले लिखा था 1s2 2s2 2p3 नहीं 4 एंड 2p5। दिस वन इज़ 2p5, ठीक है जी, ओके। सो मैंने कहा कि हमने सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो उठाना है 1 2 3 और दिस वन 4 एंड दिस वन इज़ 5। सो दिस pz, एक f का pz है तो दूसरे f का भी pz होगा, तो यानी कि क्या होगा 2pz ऑर्बिटल्स विल ओवरलैप लाइक दिस। और जो आपके पास ये कौन है, दिस वन इज़ 1 फ्लोरीन,
दिस वन इज़ सेकंड फ्लोरीन एंड दे हैव ओवरलैप्ड विद दिस ऑन दिस पॉइंट। तो ये फ्लोरीन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। सो इस तरह से आपने फ्लोरीन को बनाना है। आई एम ड्राइंग इट अगेन, लेट मी चेंज द कलर एंड लेट मी यूज़ द ब्लैक वन। एज आई सेड कि पी जेड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, पी जेड की शेप ये होगी। दिस वन इज़ द पी जेड शेप ऑफ वन फ्लोरीन एंड सेकेंड फ्लोरीन का पी जेड भी ऐसा ही होगा और ये इस तरह से ओवरलैप करेंगे। अच्छा, इनकी शेप्स इक्वल रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं स्क्रीन पे ड्रॉ करती हूँ ना तो मेरे से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है डायग्राम बनाते हुए। लेकिन ये है कि ये इस तरह की इनकी शेप्स होंगी। तो ये एक फ्लोरीन हो गया और ये आपका दूसरा फ्लोरीन हो गया, ठीक है। दिस इज़ हाउ वीबीटी वर्क्स। अब आ जाइए एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन O2 पे। O2 के केस में क्या होगा कि ऑब्वियसली वी विल जस्ट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, 1s2 2s2। एंड ऑक्सीजन का हमारे पास केस क्या होता है, ऑक्सीजन का केस होता है 8। एक ऑक्सीजन का 8 है तो दूसरे का भी यही होगा, 1s2 2s2 2p एंड दिस वन इज़ 4। फाइन। सो अगर अब हम इसकी वो लिखते हैं जैसे कि आपके सामने आ रहा है 2p4, तो मैं सिर्फ और सिर्फ p4 लिख रही हूँ क्योंकि अंदर वाले तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, ये पेयर्ड फॉर्म में है तो डेफिनेटली यहाँ ही कुछ निकलेगा, 1 2 3 एंड दिस वन 4। सो यानी कि ये भी गया, ये भी ज़रूरत नहीं है इसकी। पीछे बचे पी वाई एंड पी जेड, सिर्फ ये दो ऑर्बिटल्स होंगे जो अपनी ओरिजिनल शेप में होंगे, यानी पी वाई भी इस शेप में होगा, पी जेड भी इस शेप में होगा। इनको अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा जो हेड टू हेड ओवरलैप बनाएगा और जो दूसरा ऑर्बिटल होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन अरेंज होगा और वो सिर्फ अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। हाउ इट वर्क्स, लेट आई एम डिस्कसिंग अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ O2। सी O2 के अंदर कौन कौन अनपेयर्ड है, पी वाई के पास एक इलेक्ट्रॉन है और पी जेड के पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों एक दूसरे के अपनी ओरिजिनल शेप्स में हैं। सबसे पहले तो पी एक्स की अगर हम बनाएं ना बनाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं सिर्फ और सिर्फ पी वाई बना रही हूँ। अच्छा, शेप सबकी सेम है, ये आ गया पी वाई एक का, एक ऑक्सीजन का, और इसी तरह पी वाई ऑफ सेकेंड ऑक्सीजन आ गया आपके पास। इसको आप, ये कौन सा बॉन्ड बन गया, हेड टू हेड ओवरलैप हुआ है, ये आ गया आपके पास कौन सा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा। अब बात करते हैं कि पी वाई ने तो ये इसका एक पी वाई और जो दूसरे ऑक्सीजन का पी वाई था उन्होंने तो ये बॉन्ड बना लिया, ठीक है जी, फाइन। यानी कि ऑक्सीजन के अंदर ये बॉन्ड होता है, डू रिमेंबर। तो ये सिग्मा बॉन्ड था, जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, वो तो इन्होंने बना लिया, ये बन गया। नाउ व्हाट अबाउट द पी जेड, दिस पी जेड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पाई बॉन्ड एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू फॉर्म, लाइक ये पी जेड आपका इस तरह से अरेंज होगा, अपने उसके साथ ही है ये अपने ऑक्सीजन के साथ ही, जिसके साथ ये लगे हुए थे, लेकिन ये एक दूसरे को हेड वाइज अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कभी ऊपर से ऐसे या कभी नीचे से, और एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना लेंगे जिसको हम पाई बॉन्ड कहेंगे। तो ये जो आपके सामने यहाँ से अट्रैक्ट करना है, थोड़ी देर के लिए ये मिलेंगे, थोड़ी देर के लिए ये ऐसे मिलेंगे ऊपर से ना, ऐसे इनके थोड़ा सा ये चीज़ मिलेगी, और कभी नीचे से मिलेंगे तो ऊपर का ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपके, इसको कहते हैं वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो दिस इज़ हाउ ऑक्सीजन फॉर्म पाई बॉन्ड, फाइन। अच्छा, इसके बाद हम लोग ये एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं नाइट्रोजन की। तो अच्छा, पहले ये बता दूं कि ऑक्सीजन का होपफुली स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड था, ये सारी जो ये चीज़ है ये सिग्मा बॉन्ड को शो कर रही है, और जो ये मैंने अभी ड्रॉ किया है ऑरेंज कलर से, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, पाई बॉन्ड को शो कर रहा है। अब मैं नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ आपको, होपफुली आप लोगों को समझ में आएगा। नाइट्रोजन का केस क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अब देखिए S के अंदर तो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये तो पेयर्ड फॉर्म में है। मसला आएगा P के अंदर 1 2 3, कितने अनपेयर्ड हैं, तीनों अनपेयर्ड हैं। इसी तरह अगर एक नाइट्रोजन की बात करेंगे तो दूसरे का भी सेम यही केस है, दूसरे के साथ भी यही है, तो दूसरा मैं यहीं पे ड्रॉ कर देती हूँ नाइट्रोजन, ठीक है। एस को मैं बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ और सिर्फ P3 की बात कर रही हूँ, PX PY PZ, यानी कि आपके पास कितने ऑर्बिटल्स मौजूद हैं इस शेप के, टोटल 6 हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये X और ये X एक दूसरे के साथ मिलेंगे और ओवरलैप कर लेंगे ऐसे और ऐसे, ठीक है, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे इस तरह से। कौन कौन, इसका PX, एक का PX, दूसरे के PX को, किसके PX को, नाइट्रोजन के PX को जो आपके सामने है। अच्छा, व्हाट अबाउट दीज टू, दिस PY दिस PY दिस PZ दिस PZ। नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर होता है ऐसा,
यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, और बाकी दो बॉन्ड्स कौन से हैं, बाकी दो बॉन्ड्स आपके पास पाई बॉन्ड्स हैं। तो यानी कि पी एक्स ने तो ओवरलैप कर लिया। अब मैं आपको बना के दिखाऊंगी पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड एक पी वाई, ये मैं कलर शो कर रही हूँ पी वाई का, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कभी ऊपर से कभी नीचे से, ठीक है। और इसी तरह जैसे मैंने ये बनाया है, इसी तरह हम पी जेड की बात कर लेते हैं। पी जेड आपका यहाँ पर यूँ ओरिजिनल अपनी इस ओरिजिनल शेप में है, ठीक है। तो ये कभी पी जेड अट्रैक्ट करेगा, पी जेड अट्रैक्ट, ये वाला शेप होगी। मैं फिर से बना के दिखाती हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए। क्या कॉन्फ़िगरेशन आप लिख के बैठे हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखी है आपने, आपको पता लगा आपके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का केस ये है, यानी कि पी एक्स विद पी एक्स, ये नाइट्रोजन का एक बॉन्ड जो कि आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, ये बना जो मैंने आपके सामने ब्लैक से बना दिया। दूसरा बॉन्ड हम बनाएंगे कौन सा, जो पी वाई का था, पी वाई एंड पी वाई, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर not via direct overlapping but by just attraction and will form pi bond, ठीक। ये मैंने अट्रैक्शन से शो किया है, ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कभी ये ऊपर से अट्रैक्ट करें, कभी ये नीचे से अट्रैक्ट करें। इसी तरह हमारे पास वी हैव third one is who, it is pz orbital, and pz I am showing it with green color just to clear the concept to you that this is the pz and this is the pz, और ये आएगा और ये अट्रैक्ट करेगा ग्रीन को, और ये बना लेगा ट्रिपल बॉन्ड जो आपका सेकंड पाई बॉन्ड होगा। टोटल बॉन्ड 3 हैं और 2 पाई हैं और 1 सिग्मा है, और वो मैंने आपके सामने शो किया है। दिस इज़ हाउ नाइट्रोजन फॉर्म इट्स स्ट्रक्चर, फाइन। तो ये आपके पास सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने इधर देखा है। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, पाई बॉन्ड्स की बात आ रही है। पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं, ऑब्वियसली पहला बॉन्ड आपके पास सिग्मा बॉन्ड होगा, जैसे मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया, और जो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स होते हैं वो आपके पास कौन होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। अब इसके अंदर वो कह रहे हैं मेड फ्रॉम अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर फाउंड इन मल्टीपल बॉन्ड्स कंसिस्ट ऑफ 2 लूप्स होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, और ये इस तरह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, आपके सामने ये नज़र आ रहा है आपको, ये इस फॉर्म में, ये फॉर्म क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो ये ऐसी शेप बनेगी इनकी, अगर ऊपर से अट्रैक्ट करेंगे तो ऐसी है, जब नीचे से अट्रैक्ट करेंगे तो ऐसी है, ठीक है। ये उन्होंने शेप बना के दिखाई भी है, 1 above the bond axis and 1 below the bond axis. Along the axis of electron density is 0, the bonds are weaker than sigma bond, and it is obviously the reason is same because ये ओवरलैप तो करते नहीं हैं एक दूसरे के ऊपर, ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा ना, ये सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। सो ये पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट था आपके पास। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आ रहा है आपके पास कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड आपके पास है, द बॉन्ड इज़ formed by the overlap of atomic orbital, this is sigma overlapping, and the bond is, एक मिनट इसको मैं साइड पे कर लूँ ताकि आप लोगों को नज़र आता रहे। द बॉन्ड इज़ फॉर्म बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। साइड वाइज वही जो अट्रैक्शन के साथ मैंने शो किया था। द बॉन्ड कैन बी फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ एस पी और पी ऑर्बिटल। एस हाइड्रोजन की एग्जाम्पल कर रहे हैं, H2 की यहाँ पर HF की एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर फ्लोरीन की, और इट इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल्स ओनली। एस की बात नहीं होगी। पी ऑर्बिटल भी वो जो दो सिंगल होंगे, तो जो सेकंड सिंगल रह गया होगा वो पाई बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। द बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्गर बिकॉज ओवरलैपिंग कैन टेक प्लेस टू अ लार्जर एक्सटेंट। द बॉन्ड इज़ वीकर बिकॉज ऑब्वियसली द सेम रीज़न अट्रैक्शन की वजह से बन रहा है। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस एंड कंसिस्ट ऑफ सिंगल चार्ज क्लाउड। इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर सिमेट्रिकल होता है, उनके दरमियान क्योंकि ओवरलैपिंग डायरेक्ट हो रही होती है, तो उसके अंदर सिंगल चार्ज क्लाउड होता है, सिंगल बॉन्ड बन रहा होता है। एंड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज़ डिसकंटिन्यूस एंड कंसिस्ट ऑफ 2 चार्ज क्लाउड बिकॉज ऊपर अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन आपके पास पाई बॉन्ड्स ऊपर और नीचे से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो 2 फेज्ड हो जाता है वो। देयर कैन बी फ्री रोटेशन ऑफ एटम अराउंड द सिग्मा बॉन्ड, फ्री रोटेशन ऑफ एटम अराउंड द pi bond is not possible. The bond may be present between the 2 atoms either alone or along with pi bonds. The bond always present between 2 atoms along with the
सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड होना मस्ट है। सिग्मा बॉन्ड के केस में पाई बॉन्ड होना मस्ट नहीं है, बट पाई बॉन्ड के केस में पहला बॉन्ड आपके पास क्या होता है, इट इज़ सिग्मा। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय द it is determined by the sigma framework around the central atom, and the pi bond do not contribute to the shape, however they modify the dimensions बता सकते हैं, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन शेप सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बताते हैं। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ what, this is a concept of sigma and pi bonds, and that is how VBT is arranged, and that is how I have arranged the valence bond structures for you. Fine. So hopefully you have understood the concept and the confusion is clear now. In the next lecture I am going to explain about hybridization. Okay, Allah Hafiz.